Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in our previous class, we discussed question number 4 of exercise 12.3 class 8 NCERT maths. Today we are going to be doing question number 5 of the same exercise. Question number 5 is really important and is one of the most important questions from exam point of view of this exercise. So without any further ado, let's get started. So the question says factorize expressions and divide them as directed. With the first part being y square plus 7y plus 10 divided by y plus 5. So हमें यहाँ पे दिख रहा है that y plus 5 is already in its factorized form. Can we further factorize y square plus 7y plus 10? The answer is yes. देखो इसमें हमें कोई कॉमन फैक्टर्स तो दिख नहीं रहे हैं, सो कॉमन फैक्टर मेथड वुड डेफिनेटली नॉट बी एप्लीकेबल ओवर हियर. Next method that we have studied is the regrouping method, but since there are only 3 terms, regrouping won't work either. Next method was our identities. No identity is applicable over here, but the last method was splitting the middle term or STMT. Let's check if splitting the middle term would be applicable. So we can see that the coefficient of y is not given, hence we can assume it as 1. 1 into 10 is 10. Now we have to find the factors of 10 that when added will be 7. So we know that factors of 10 are 1 and 10, 2 and 5, right? And the factors when added shall be 7. 1 plus 10 is not 7, but 2 plus 5 is 7. So the correct pair of factors is 2 and 5. Hence we can write this as y square plus 2y plus 5y plus 10. Now we will be doing through the regrouping method. The common factor here is y. So it will be y plus 2 प्लस इन दोनों में से कॉमन लिया हमने 5, y प्लस 2 यहाँ पे बचा. y प्लस 2 इन दोनों में ही कॉमन है और फिर बचा y प्लस 5. Hence this is the factorized form of the expression y square plus 7y plus 10. तो हम क्या y square plus 7y plus 10 को y plus 2 and y plus 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं? Absolutely. Now we can see कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में y plus 5 और y plus 5 कॉमन टर्म्स हैं, तो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया एंड द फाइनल आंसर बीइंग इज y plus 2. आप इसको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हो एंड विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकते हो. नाउ देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन यू आर attempting this in your exams, make sure to do this calculation just next to your final answer so that the teacher can also see कि हाँ इसको आता है, इसने किया है, and thus no marks of yours would be deducted. Now let's move on to our second part being m square minus 14m minus 32 upon m plus 2. Now we can see कि m plus 2 फिर से अपनी फैक्टराइज फॉर्म में है, लेकिन m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? यस. तो हम देख सकते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर मेथड होगा नहीं, रीग्रुपिंग इसमें होगा नहीं, आइडेंटिटीज फॉलो हो नहीं रही है, तो लास्ट मेथड हमारा जो बच रहा है दैट इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो हम जल्दी से m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 को फैक्टराइज करते हैं थ्रू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. m का कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दिया नहीं हुआ है, तो हम इसको 1 सपोज कर लेते हैं. 1 इंटू माइनस 32 इज माइनस 32. अभी हम नेगेटिव साइन को साइड छोड़ के सिर्फ 32 को फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले. तो ये 2 इंटू 16 हो जाएगा, है ना. 3 की टेबल में 32 आता नहीं है, 4 इंटू 8 हो जाएगा. 32 कितनी फैक्टर्स हैं? यस. अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब इनमें से कोई एक फैक्टर होगा नेगेटिव.
फॉर एग्जाम्पल ये दो का पेयर है तो इनमें से कोई एक होगा नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव इंटू पॉजिटिव रिजल्ट्स इन नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। बट नाउ वी सी कि जो हमारा मिडिल टर्म है वो है नेगेटिव, सो द बिगर नंबर हैज़ टू बी नेगेटिव, ताकि जब इनका हम सम ले तो आंसर नेगेटिव आए। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। नाउ व्हेन वी सी 2 minus 16 gives you minus 14, but 4 minus 8 gives you minus 4. तो 4 minus 8 नहीं होगा, करेक्ट फैक्टराइज पेयर हमारा 2 and minus 16। इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 16m माइनस 32। अब हम कर लेंगे रीग्रुपिंग, राइट। यहाँ से हमने कॉमन लिया m, ये हो जाएगा m प्लस 2, यहाँ पे हमने माइनस साइन और 16 कॉमन ले लिया है, यहाँ पे बचेगा m, और क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया ये माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें m प्लस टू कॉमन दिख रहा है दोनों साइड पे, तो हम m प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बचेगा m माइनस 16। हेंस हम क्या m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 को m प्लस 2 और m माइनस 16 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, तो हम इसको लिख देते हैं एज m प्लस 2 एंड m माइनस 16। डिनोमिनेटर में हमारा m माइनस 2 रहेगा। अब हमें दिख रहा है कि m प्लस 2, अब हमें दिख रहा है कि m प्लस 2 क्या है, कॉमन है, और ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, तो हम इसको कर देंगे कैंसिल आउट। हमारा जो रिजल्ट यानी जो आपका फाइनल आंसर है वो है m माइनस 16। प्लीज चेक योर आंसर्स एंड प्लीज नोट इट डाउन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। It can easily come as a 2 or 3 marker in your exams. Next, the third part of question number 5 is 5p square minus 25p plus 20, and in the denominator we have p minus 1. सो हमें दिख रहा है कि p माइनस 1 हमारी ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, बट क्या 5p स्क्वायर माइनस 25p और प्लस 20 फैक्टराइज्ड फॉर्म में है? नो, इसको हम सिंपली बाय कॉमन फैक्टर मेथड से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस हर टर्म में 5 इज अ कॉमन फैक्टर। सो इफ वी टेक आउट 5, we have p square minus 5p plus 4, and in the denominator we have p minus 1. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा that this expression p square minus 5p plus 4 can be further factorized by splitting the middle term. Let's see how. तो यहाँ पे हमने ले लिया है p square minus 5p plus 4, राइट। सबसे पहले हमें देखना है कि p स्क्वायर का कोफिशिएंट है, नहीं, तो हम इसको 1 मान लेते हैं, और 1 into 4 is 4। 4 के दो फैक्टर्स है हमारे, एक तो 1 and 4 है, दूसरा 2 and 2 है। अब क्योंकि इसमें ये नेगेटिव है, मिडिल टर्म हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा बड़ा नंबर होगा नेगेटिव, राइट। बिकॉज whenever we are adding two integers and we want a negative integer as the answer, हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है वही नेगेटिव रहता है, राइट। नाउ बिकॉज हमारा जो नंबर है वो है 4, लेकिन 1 into -4 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, -4, बट यू वांट इट एज 4। सो अगर हम यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा देंगे, दैट इज नेगेटिव
दैट इज नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स यू पॉजिटिव, राइट, बट नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ऑलवेज गिव्स यू नेगेटिव। तो क्योंकि हमने नेगेटिव नेगेटिव कर दिया तो अब इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। सो ये जो है हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। नाउ अब अगर हम देखेंगे -2 एंड -2, दिस विल एड अप एज -4, बट हमें -5 चाहिए तो इसको हम कट आउट कर देते हैं। -1 एंड -4 विल गिव यू -5, तो ये हमारा करेक्ट पेयर है। तो इसमें हमने लिखा p², इसको हमने लिख दिया -1p, या फिर आप सीधा -p भी लिख सकते हो, और -4p, और यहाँ पे +4 एज इट इज कॉपी हो गया। अब रीग्रुपिंग के हेल्प से हम इसको रीग्रुप कर लेंगे। यहाँ पे हमने p को कॉमन लिया, ये हो जाएगा p-1, माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 कॉमन, ये हो जाएगा p, ठीक है, ये हो जाएगा p प्लस सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लिया है, नेगेटिव बाहर आया है, तो नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा p-1। कैसे हुआ ये मैं एक बार वापस समझा देती हूँ। बिकॉज अगर हम माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, बट सिंस वी वांटेड एज प्लस, हम माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हमने इसको माइनस बना दिया। अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, ये हो जाएगा -4p एंड +4। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस है, राइट। सो अब हमें दिख रहा है कि p-1 हमने कॉमन ले लिया और p-4 हमने ले लिया है। तो अब क्या मैं p² -5p + 4 को p-1 और p-4 के फॉर्म में लिख सकती हूँ? एब्सोल्युटली। तो ये हो जाएगा हमारा p-1 p-4 और डिनोमिनेटर हमारा p-1 ही रहेगा, राइट। अब हमें देख रहा है कि यहाँ पे p-1, यहाँ पे p-1 कॉमन है, तो हमने कट कर लिया। हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 5p-4। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। लेट्स कम ऑन द फोर्थ पार्ट। So now in the fourth part we have 4yz, in the brackets we have z² plus 6z, and we also have we have -16 upon, in the denominator we have 2y and in the brackets we have z plus 8. So now we can see कि ये जो हमारा denominator है ये तो fully factorized है, but can we further factorize this expression? Let's find out. So हमारा expression है z² plus 6z minus 16. अब देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पे हो नहीं पाएगा, रीग्रुपिंग हो नहीं पाएगा, आइडेंटिटी देखते हैं। ऑल्दो 16 could be written as 4², बट हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्या होती है, या तो a + b होती है, राइट, होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा a होता है और जो हमारा b होता है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, राइट, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी नहीं चलेगा। लास्ट मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेट्स सी दैट। सो सबसे पहले तो हमें देखना है कि यहाँ का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमें दिया नहीं हुआ है। लेट्स अज्यूम इट एज 1 इंटू -16 इज -16 इटसेल्फ, राइट। अब -16 को हमें फैक्टर्स में निकालना है। अभी हम माइनस साइन भूल जाओ, सिर्फ 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। सो 4 × 4, 2 × 8, राइट। 3 के टेबल में आता नहीं है, 5 के टेबल में आता नहीं है, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता। तो बेसिकली यही आपके फैक्टर्स हैं। नाउ बिकॉज इट्स नेगेटिव, राइट, बिकॉज इट्स नेगेटिव, one number has to be negative and the other has to be positive, because negative into positive results in negative, right? This is what you've studied. So एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। अब ये कैसे डिटरमाइन होगा कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव होगा? बाय लुकिंग एट द मिडिल टर्म। Since the middle term is positive, the bigger number would be positive and the smaller number would be negative. अब अगर हम ये देखें -4 + 4, इसका आंसर तो 0 आ रहा है, तो ये हो नहीं पाएगा। बट -2 and +8 का आंसर आता है +6।
दिस इज़ द करेक्ट पेयर. इसको मैं लिख सकती हूँ जी स्क्वायर प्लस 6z को हमने निकाल लिया है -2z, राइट, -2z एंड प्लस 8z, राइट, -16. अब रीग्रुपिंग कर देते हैं. इसमें z कॉमन लिया हमने, ये हो जाएगा z-2 प्लस यहाँ पे हम 8 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा z-2. z-2 हमारा कॉमन हो गया, राइट, z-2 इज़ कॉमन और z+8 बचा है. तो क्या मैं जी स्क्वायर प्लस 6z -16 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल. ये हो जाएगा आपका 4yz z-2 z+8, डिनोमिनेटर में 2y एंड z+8. अब यहाँ पे z+8, यहाँ पे z+8 कॉमन कट कर दो. ये 2 4 से कट हो जाएगा, 2 टाइम्स y से कट हो जाएगा. तो यहाँ पे बचेगा 2z z-2 as your final answer. Alright, let me check it, and it is correct. Up now let's move on to question number 5. There are 3 more parts. Part number 5 says 5pq p square minus q square divided by 2p p plus q. Alright, so we have 5pq p square minus q square and 2p p plus q. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं. लेट्स सी. तो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें p का स्क्वायर माइनस q का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है हमें. यस, कॉमन फैक्टर मेथड इसमें अप्लाई हो नहीं पाएगा, राइट. कॉमन फैक्टर नहीं हो पाएगा. और क्या बचा हमारा? रीग्रुपिंग बिल्कुल नहीं होगा. आइडेंटिटी देखते हैं. यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. हमने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है. तो क्या हम ये आइडेंटिटी इस पे अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम ये आइडेंटिटी इस पे अप्लाई कर सकते हैं? यस. ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p प्लस q एंड p माइनस q, राइट. तो क्या मैं p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को p प्लस q p माइनस q लिख सकती हूँ? यस. ये हो जाएगा 5pq p प्लस q एंड p माइनस q. डिनोमिनेटर में हमारा 2p एंड p प्लस q रिमेन. अब p प्लस q दोनों जगह मिल रहा है हमें, तो हमने p प्लस q काटा. यहाँ पे आप p को काट सकते हो, राइट. तो यहाँ पे आपका बचेगा 5q p माइनस q अपॉन 2. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप फ्रैक्शंस को अलग लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो 5/2 q p माइनस q. ये थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड वे है, बट both the answers are correct. Now let's come on to the 6th part, that is 12xy 9x square minus 16y square एंड डिनोमिनेटर में है हमारा 4xy 3x प्लस 4y. ध्यान से देखना.
सबसे पहले देखो, ये तो हमें फैक्टराइज्ड है पता है, क्या ये फैक्टराइज्ड है? नहीं। क्यों? लेट्स चेक। हमें गिवन है 9x² माइनस 16y²। क्या मैं 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? यस, क्योंकि वो भी 9x² ही होगा। एंड माइनस करके क्या मैं यहाँ पे 4y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? राइट। अब हमने जैसे ये वाली आइडेंटिटी देखी थी a² माइनस b², क्या ये आइडेंटिटी यहाँ पे होगी a² माइनस b², राइट, क्योंकि ये एक स्क्वायर है माइनस एक और स्क्वायर है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे कि एक बार ऐड होगा एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y एंड 3x प्लस 4y, राइट। अब इसको इधर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 12xy 3x माइनस 4y एंड 3x प्लस 4y, डिनोमिनेटर में 4xy एंड 3x प्लस 4y। अब हमें कॉमन दिखिए, कैंसिल कर दो, xy हो गया कट, 4 1 टाइम्स 4 3 टाइम्स, आंसर है आपका 3 ब्रैकेट्स में 3x minus 4y. These are very simple yet very important questions, so don't forget to solve them. Last but not least, right, थे last part of question number 5. तो this is what we have. सबसे पहले देखो, ये तो हमारा फैक्टराइज्ड है, ठीक है, ये वाला जो हमारा ये फैक्टराइज्ड है, इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। यस, अगर हम यहाँ पे इसको साइड में ले लें तो 50y² माइनस 98, इसे हम कॉमन फैक्टर मेथड से 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हमने 2 को कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 25y² माइनस 98 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होता है 49, राइट। अब इसमें हमें क्या कुछ दिख रहा है? क्या मैं इसको 2 को बाहर लेके 25y² को 5y का होल स्क्वायर और 49 को 7 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। क्या मैं इसको 5y का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और बीच में माइनस, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा 39y³ इंटू, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है, 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, राइट। राइट, और हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें आ जाएगा 26y² और 5y प्लस 7 विल रिमेन एज इट इज़। अब हमने पढ़ा है कि यहाँ पे क्या कोई आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। यस, दैट इज़ a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। पिछले 2 क्वेश्चंस में भी यही आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y 5y प्लस 7 एंड 5y माइनस 7, राइट। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे आज 39y इंटू 2y³ इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा 5y प्लस 7 5y माइनस 7, डिनोमिनेटर विल रिमेन स्क्वायर एंड 5y प्लस 7, 5y प्लस 7 5y प्लस 7 कट कर दिया। अब देखो y² y को यहाँ पे आया y, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, या फिर हम इसको 13 2 कर सकते हैं और इसको हम 13 3 कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ गया आपका 3y 5y माइनस 7 अपॉन 2। इसको आप या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर आपको और फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप 3/2 y 5y माइनस 7 की तरह भी लिख सकते हो। With this, our exercise
12.3 is fully covered. Make sure that you practice these questions really nicely and properly. I will be doing an extra question video on the same topic as well, since this topic is really important. Also, make sure to practice question number 5 and 3 especially. Thank you so much. Please like, share and subscribe the video. Bye bye.